also. Okay. So you guys wanted to build the head end of today's session, or we can continue with the theory, then we'll onboarding will perform. Okay, so my suggestions, okay, like you got the lab, okay, you can go through the document, okay, and build the lab, okay, like in maybe the lab maybe not ready for you. So if you are able to access the lab, it's fine. Okay, if you are if something you have the issue to accessing the director or anything, just let me know. Okay, so today we are today agenda to we can discuss the basic overview, control plane, data plane, okay, and the interfaces of the Versa. Okay, so I would just quickly recap. Okay, last two sessions what we discussed. Okay, we discussed about the director, what director does. Okay, and how it's in the setup. Okay, in production setup is generally configured. Mostly it is in work. It is active working in active backup mode only. Okay, and controller always be in active mode, and analytics can be active and active backup. Okay, based on the scenario. Okay, maybe the newer versions which Versa has the 22.2.3 or the grid or 22.2. Okay, so this cluster you can make it as active also. Okay, so if you go through the last the documentations, okay, where we detail discuss about the analytics controller, okay, and the director part. Okay, today we are going to talk about the controller, okay, the control plane and data plane. So Hemant and Siddhar, you were able to access the lab? Yes, sir. I was able to. Okay, and still the director or analytics is not configured, or it's already like configured. Can you just share your input? So I was trying to access. Actually, it was my lab was having issues, so I got the access today. So I was trying it, but I think the director was shut down for me. I just restarted for my side. okay. So today, what we can do today, we can complete the today's sessions. Okay, maybe we are going to talk about the control and data plane and control plane. Okay, and then we will tomorrow we will do the practical only. Okay, so maybe if you have any doubt or any issue in the accessing the lab, or any doubt in terms of the deploying this hidden part, okay, so those things we can troubleshoot tomorrow. Today we just going to cover the control plane and data plane. Okay, so okay, so okay, so first we can talk about the how the earlier, okay, the routing happen. Okay, like when we are using the MPVPN sorry VPN. Okay, so what happened the earlier, okay, so maybe the provider side I'm considering this is the provider network. Okay, you can consider any other service provider, and the service provider earlier was not before the MPLS. They are using the some of the IGP protocol. Okay, this IGP protocol, maybe the OSPF. Okay, or maybe someone can use ISIS also. Okay, and on top of that, for the between the P2C, okay, they can use static protocol or some BGP protocols, okay, and they redistribute it. So what happened? If suppose this is a simple topology where you have the only the two PC, okay. When we're talking about the provider network, there's a multiple customers. Okay, the multiple customers, the same backbone is serving to the multiple customers. Okay, so what happened? The packet when the going to the P router, okay, and it's perform the lookup. Okay, to reach, for example, the host one want to reach to the host two. Okay, so it will check the routing table, and each hop it will perform the lookup, and it will choose the best path and reach to the destinations. So what challenges was there? Each each hop the routing has to do the lookup,
and based on that it forward to the next hop. Okay, so if again to the next hop, again it will do the lookup and forward to the next hop. Okay, this way the packet can reach, okay, by alternate path, maybe this one or maybe other path, okay, available. So this way the initially in 2004 or that times these multiple service provider used to route their traffic like that. Okay, so that time, okay, the challenges was that sometimes if the more customers are there, okay, the process CPU getting increased, your because of the routing table memory got consumed. Okay, so those challenges where the user face, okay, or because of that they face the outages. Okay, so this is the just view how this traditional networking was working earlier, okay, around 2003 and 2004 or before that. Okay, so like you maybe discuss maybe in your experience, okay, then you maybe in the day-to-day when you're talking about the SD-WAN, okay, people are talk about the two terms, okay, mostly the underlay terms as well as the overlay terms. Okay, so what is understanding underlay? What happen? It's kind of the any physical media, okay, which is providing you the connectivity. Okay, so that is called underlay. Okay, and overlay, what happen? We are in the top of that. Okay, we are creating some tunnels. Okay, the between the two like endpoint is called overlay. Okay, and this is the overlay concept is not new. Okay, this is a people used to from very long time. Okay, if but maybe the terminology they're using, maybe the name is different. Okay, but this terminology overlay technology was people were used to earlier also. So any doubt in terms of the underlay and overlay or any question? Guys? No doubt. Okay, so this is the, I think everyone may be aware. Okay, this is the simple concept. Okay, underlay overlay. So many of like if you're going for the exam also, so sometimes a few questions ask about the underlay and overlay. Okay, so just you can go through it. Okay, okay. So this is just a view. Okay, how this overlay work. Okay, the overlay is transported over the physical link. Okay, so we require somewhere the physical link. Okay, and it's build the logical connection between the devices. Okay, so maybe the GRE is one example, or the IPsec is one example. Okay, it's building the IPsec. Okay, top of the underlay. Okay, and the physical network provide the transport path. Okay, this is your underlay. Okay, and you're building the connectivity on the top of that. It's a overlay. Okay, the traffic is encapsulated by using the tunnels. Okay, maybe you're using the IPsec tunnels or the GRE tunnels. Okay, whatever it is, it's a part of the your header only. Okay, so this is the called this overlay using the overlay technology using the tunneling technology is called tunneling technology as well. 1 minute, guys. I will go through. Okay, like you guys aware about the GRE concept? What GRE, how GRE does, how GRE configure earlier? Yes, sir. Yes. Okay, so in GRE nothing. Maybe the one maybe you have the one IP address. Okay, one IP address this site. Okay, so when the GRE tunnels, when we creating the configurations, you can go through the Google. You will come to know. You're assigning one GRE IP address here. Okay, and you're assigning the source IP address and destination IP address. Okay, so your tunnel will be formed on the IP address on the GRE which you creating. Okay, similar concept for these IPsec also. Okay, similar when we are using the two firewalls. Okay, the between the firewall 1 and firewall 2, you creating the IPsec tunnel. This is also part of the you can say this is also one type of the example of the overlay. Okay, this is also one type of the overlay. Okay, so people are saying what is overlay? We can give the example of the say theoretically GRE is also one kind of the overlay, and IPsec is also kind of the overlay technology.
MPLS is also kind of the overlay technology? Yes, no? Yes, kind of. Sir. Yeah. Hello. Yeah, please. Yes, kind of. Okay. So is MPLS is also kind of the overlay technology? Okay. So in MPLS, what happened? Your like packet will be going till here. Okay, the P router is the IPv4 packet, right? When the packet is like hitting to the interface, it will hitting to the VRF, right? Then your traffic will going as a VPN v4 route, right? Then it's searching, okay, it will identify this route, the specific destinations I'm getting from this P, right? So it is kind of the getting through the tunnels only, right? This is the MPLS tunnels. Okay, so this is the one concept which any times, okay, you guys feel okay, you need some clarifications, any questions, okay, feel free to discuss. I have some questions, sir. Yeah. Okay, सर अभी हमने जैसे अंडरले और ओवरले का डिस्कशन किया, ठीक है? तो मेरा अंडरले तो क्लियर है, ओवरले में वर्षा में जैसे मैं पूछूं आपसे कि सीपी टू सीपी मेरी 2 टनल बन सकती है, जैसा कि आपकी स्लाइड में दिखाया है। एक पहली जीआरई पे भेज सकते हैं सीपी टू सीपी डाटा। अभी हम लोग उस पे आएंगे अभी, ठीक है? अच्छा, अभी आगे है क्या? हम लोग अभी आगे आएगा, ठीक है? हाँ, ये तो जस्ट ये ओके, अभी हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे नहीं पहुंचे, ठीक है? वर्षा का जो टनलिंग पार्ट है, अभी हम लोग उस पे भी नहीं पहुंचे, ठीक है? अभी हम लोग जस्ट जो अपना लेगेसी है ना, लेगेसी से हम लोग चालू कर रहे हैं कि भाई लेगेसी में आपका नेटवर्क कैसे चलता था, ठीक है? हमने पहले चालू किया कि भाई पुराने समय में नेटवर्क किस तरीके से बिल्ड होता था, ठीक है? कि भाई आपका जीआरई के थ्रू भी आप बनाते थे, ठीक है? यदि किसी कंपनी के 2 ऑफिसेस डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, तो क्या करते थे कि भैया एक आपने फायरवॉल वहां पे ले ली, एक फायरवॉल एक ए लोकेशन पे ले ली, एक फायरवॉल बी लोकेशन पे ले ली, राइट? और उसके ऊपर पे आपने आईपीसेक बना दिया, तो आपका जो डाटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, क्योंकि जो जीआरई था वो आपका जो इट वाज नॉट इनक्रिप्टेड, राइट? सो क्लियर टेक्स्ट भी इंफॉर्मेशन उसको दिस चांसेस यू कैन समवन लाइक यूजिंग some tools, okay, those tools you can decrypt also, ठीक है? तो उस तरीके से अभी हम लोग उस पे कॉन्सेप्ट पे नहीं पहुंचे, हम लोग अभी टनल में आपको दिखाऊंगा, ठीक है? जब हम लोग वहां पे पहुंचेंगे ना, तो हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे हैं कि कौन सा दिस ओवरले टेक्नोलॉजी था पुराने समय में, कौन सा टेक्नोलॉजी ओवरले आप किसको बोल सकते हो, मतलब, ठीक है? अभी हम लोग वर्षा वाले कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे अभी, ठीक है? ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। ये तो जस्ट जो ट्रेडिशनल समय से चल रहा था ना, वो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि आपको ट्रेडिशनल भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ट्रेडिशनल में कैसा चल रहा था, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग कुछ को कम एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस, जो हो सकता है कि किसी को कुछ ना पता, इसलिए आई एम ट्राइंग टू टेक दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, सही है, राइट सर। ओके, सो ये आपका एक प्रोवाइडर जब MPLS आया, देन व्हाट द बेनिफिट पीपल गॉट, ठीक है? हर एक कस्टमर का सेपरेट राउटिंग टेबल सेपरेट हो गया, है ना? कस्टमर ए, कस्टमर बी, ठीक है, जो भी है यहाँ पे। तो भाई कस्टमर ए का राउटिंग टेबल सेपरेट रहेगा, ओके? एंड एज वेल एज दी जो ओके, कस्टमर बी का राउटिंग टेबल सेपरेट होगा, क्योंकि दोनों के लिए सेपरेट वीआरएफ बनेगी, राइट? मतलब मान के कस्टमर ए है मेरा, तो इसकी वीआरएफ सेपरेट बनेगी और कस्टमर बी की सेपरेट वीआरएफ बनेगी। तो इसमें कस्टमर को बेनिफिट क्या मिला, ठीक है? कस्टमर को बेनिफिट ये मिला कि भाई पहले जो लेगेसी के समय था, तो उसमें क्या होता था, राउटिंग डोमेन कॉमन होता था। यहाँ पे जो कस्टमर का जो राउटिंग डोमेन हो गया, वो स्पेसिफिक टू कस्टमर हो जाएगा, राइट? ठीक है ना? इस कस्टमर के लिए सेपरेट एक वीआरएफ बन जाएगी, ओके? कस्टमर ए के लिए यहाँ पे सेपरेट वीआरएफ बन गई, कस्टमर वी के लिए सेपरेट वीआरएफ बन गई, ठीक है? बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं हम लोग, वो जो दैट वी आर यूजिंग, ओके, वी आर यूजिंग दी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बैकबोन, राइट? ठीक है, ये जो कॉमन बैकबोन है वो आप यूज कर रहे हो, ओके? बट इसके लिए सेपरेट राउटिंग टेबल होगी, इसकी सेपरेट राउटिंग टेबल होगी, राइट? है ना? इस तरीके से वन एडवांटेज की आपका राउटिंग डोमेन कॉमन सेपरेट हो गया using the common infrastructure, but your routing part is separate. Second advantage था on MPLS, you guys
गॉट द क्वालिटी ऑफ सर्विस। ओके, क्वालिटी ऑफ सर्विस आप यूज कर सकते थे, क्योंकि पहले क्या होता था कि वीडियो ट्रैफिक, वॉइस ट्रैफिक, ओके, जो जैसे कॉल सेंटर है या कोई भी, आप जैसे वीडियो आप किसी से बात कर रहे हो, राइट, आपको यदि स्मॉल भी जिटर आएगा, इसमें फ्लक्चुएशन आएगा, तो आपको मतलब दिखेगा कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, राइट, यदि इसमें कुछ भी नेटवर्क में डिस्टरबेंस होगा तो आपको एक इमीडिएटली ट्रिगर होगा कि यस देयर इज सम प्रॉब्लम इन द, क्या हम लोग बात करें इंटरेक्टिव सेशंस, राइट, तो ये पैकेट आपके ड्रॉप नहीं होना चाहिए, राइट, है ना। तो ये ड्रॉप नहीं होना चाहिए, उसके लिए कौन क्या यूज, एमपीएलएस ने का क्या जो एडवांटेज था, क्वालिटी ऑफ सर्विस, राइट, क्यूएस। ओके, क्यूएस इज द, जहाँ पे आप वॉइस का ट्रैफिक और वीडियो का ट्रैफिक यू कैन गेट द प्रायोरिटी। आपका हो सकता है कि डाटा, मेरा मेल 1 मिनट बाद जाए, 2 मिनट बाद जाए, तब भी चलेगा, राइट, बट मेरा जो वीडियो ट्रैफिक, वॉइस ट्रैफिक, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मोस्टली जो कॉल सेंटर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉल सेंटर है, उनके लिए वॉइस ट्रैफिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इवन स्मॉल स्मॉल कॉल ड्रॉप्स भी होता है तो देयर इज अ बिग बिजनेस लॉस फॉर देम। Okay, so if you're talking about to most of the enterprises, okay, जितने भी enterprises हैं जो जिनका वीडियो वाइज ट्रैफिक यूज कर रहे हैं, ठीक है, या डाटा जैसे बैंकिंग है, ठीक है, सब लोग ने अपने नेटवर्क को कहाँ शिफ्ट करना चालू कर दिया, वहां से लेगेसी से उठा करके एमपीएलएस में शिफ्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। जब हम एमपीएलएस में शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि ये सॉल्यूशन इज आल्सो गुड, ओके, बट ओनली चैलेंजेस कब आने चालू हुए, जब पहले क्या होता था कि जो हेड ऑफिस होता था, ठीक है, कस्टमर के हेड ऑफिस में मोस्टली इंटरनेट सेटअप होता था, ठीक है, जैसे वो आप यदि आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, ठीक है, तो क्या होता था कि कोई भी ब्रांच उसके हेड ऑफिस पे जाएगी, ठीक है, मान के चलो कि ये मेरा हेड ऑफिस है, तो यहाँ से पे मेरे पास उसकी यहाँ पे सिक्योरिटी की डिवाइसेस होगी, फायरवॉल होगा, आईडीएस होगा, आईपीएस होगा, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से ट्रैफिक लेकर के जाऊंगा इंटरनेट के लिए, और मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन कहाँ होती थी, ऑन प्रीमाइसेस होती थी, ठीक है। ये सॉल्यूशन 2014-15 तक इज वेरी गुड, ओके, बट आफ्टर दैट व्हाट हैपन, मोस्ट ऑफ द enterprises start shifting their application in the cloud, okay, मोस्ट ऑफ द, यदि आपका मेल देखोगे तो मेल आपका क्लाउड में होगा, राइट, तो यदि आपके मेल है और अदर एप्लीकेशन दी उसमें बेनिफिट एक तो वन इज अ कॉस्ट बेनिफिट, सेकंड इज स्केलेबिलिटी बेनिफिट, ठीक है। यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि उसके एप्लीकेशन को शिफ्ट करके क्लाउड पे डालती है, देन बेनिफिट इज दैट मुझे कल को अपना सर्वर को चाहिए तो मुझे कोई हार्डवेयर प्रोक्योर नहीं करना है, राइट, मुझे वहीं पे ऑर्डर में अपना जस्ट इंस्टेंस इनेबल करूंगा और उसके जो भी चार्जेस होंगे वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएंगे, आपका प्रीपेड टाइप का हो गया, राइट, ठीक है ना, कि आपने जो यूज करोगे उसके आपको पैसे देने हैं, है ना, करेक्ट। सो आपका जो एप्लीकेशन शिफ्ट होना चालू हो गया इंटरप्राइजेस पे, तो आपके जब अब हर एक एप्लीकेशन का ट्रैफिक यहाँ पे आए और यहाँ से निकले क्लाउड की तरफ पे, इट विल कंज्यूम मोर बैंडविड्थ, राइट। तो इस तरह के नेटवर्क की रिक्वायरमेंट आना चालू हुई कि भाई मुझे क्यों नहीं मेरा इंटरनेट यहाँ से लोकली चला जाए क्लाउड के ऊपर, राइट। तो इसके लिए एमपीएलएस टेक्नोलॉजी इज नॉट गुड, ओके। यदि हम इसके लिए SD-WAN कैन प्ले वेरी गुड रोल, ओके, इन टर्म्स ऑफ कि भाई मेरे पास यदि SD-WAN का बॉक्स है, देन मैं यहाँ से लोकल इंटरनेट, मुझे इंटरनेट का ट्रैफिक इंटरनेट की तरफ चला जाएगा, और जो मेरा एप्लीकेशन होस्टेड है, हेलो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये जो आपने बताया in the legacy architecture, sorry to correct you one point here, you said that decentralized internet is going via the data center. It's not always the case, na? Some customers they might have most of the own dedicated internet along with the MPLS. So internet का traffic उसको locally भी भेज सकता है। नहीं भेज सकता है। फिर उसमें क्या होगा, आपको यदि जब आपको लोकल इंटरनेट ट्रैफिक चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, दिस इज अ मल्टीपल सिनेरियो, ठीक है, इज नॉट ओनली वन सिनेरियो, ओके। तो एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास मैंने एक एमपीएलएस का लिंक ले लिया और मेरे पास एक इंटरनेट का मैंने एक फाइबर ले ली, राइट। मैं यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा होगा कि भाई मुझे क्या रिक्वायरमेंट है कि मैंने यहाँ पे एक एमपीएलएस का सीपी ले लिया और मैंने एक इंटरनेट की फाइबर ले ली, ठीक है। फिर मेरा जो कोर स्विच होगा, मैं इस पे जो डाटा का ट्रैफिक इधर फॉरवर्ड कर दूंगा, जो इंटरनेट का ट्रैफिक इधर फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। ये भी एक सिनेरियो था आपके। इसमें क्या होगा आपको कि एमपीएलएस का बंदा अलग मैनेज करने वाला चाहिए होगा, सिक्योरिटी वाला बंदा अलग मैनेज करने वाला चाहिए होगा, है ना, कि मैं टू डिफरेंट राउटर ही है, if I don't use the, ठीक है, फायरवॉल तो है मेरे पास,
मेरे पास इंटरनेट राउटर है, so that can be managed by the same team. और वो बंदा जस्ट अगर मेरा क्या हाँ, देखो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तब तो आप जैसे आप यदि छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे ना, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि एक ही बंदा नेटवर्क भी देख रहा होता, सिक्योरिटी भी देख रहा होता, इस तरीके से मतलब कॉम्बिनेशन तरीके से काम चल रहा होता, करेक्ट। और एमपीएलएस जब हम एसडीएन की बात करें, हम बात कर रहे हैं कि एडवांटेज क्या थे, राइट। जब एडवांटेज क्या हुए कि भाई ये भी एक सिनेरियो था आपने जो बताया, दिस करेक्ट, ओके, कि भाई तो अपने यहाँ इसमें पे ना एक बहुत सारी प्रॉब्लमें थी। हाँ जैसे मतलब जो मेरे 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 अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि हर कंपनी एक सेट ऑफ पॉलिसीज रखती है अपने पास में, ठीक है, एडी सर्वर और बहुत सारी जितनी भी पॉलिसीज वगैरह है, ठीक है। और आपके उसके पास में मान लो 500 ब्रांचेस है, तो 500 ब्रांचेस पे उन पॉलिसीज के फायर, अब 500 ब्रांचेस पे या तो वो एक एक हाई, और जो फायरवॉल यहाँ पे पॉलिसीज रखती है पर्टिकुलर कंपनी के लिए, हेड एंड फायरवॉल जो होगा सबसे टॉप वाला फायरवॉल, अब वो हायर रिसोर्सेज वाला फायरवॉल होगा, और वहां पे जो पॉलिसीज उसने पुश करी है वो हर ब्रांच पे सारी पॉलिसीज, सारे एडी सर्वर और सारी चीजें हर ब्रांच पे सो नहीं डाल सकती। जस्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि क्या एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे। तो आपका हर एक डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटेड रहता था, राइट। यहाँ पे मतलब करेक्ट। हर एक की पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसकी पॉलिसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, इसकी भी पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। आप मान के चलो कि आई वर्क वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, जहाँ पे क्या होता था कि भाई कल को कुछ अटैक आया, ठीक है, मान के लो एसएसएच ब्लॉक करना है, तो हर एक डिवाइस में जाओ ब्लॉक करो एसएसएच। एग्जांपल कुछ सिक्योरिटी का इस तरीके से चल रहा था कि वी आर दिस आईपी एड्रेस दे वांट टू ब्लॉक, राइट। अब मेरे पास 100 डिवाइसेस है, तो 100 डिवाइसेस में जाके ब्लॉक करूं उस एसएसएच को, मतलब इट्स वेरी वेरी टीडियस टास्क, राइट। यदि मेरे पास सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो जाए कि भाई मैंने एक पॉलिसी बनाई और उसको पुश कर दिया हर एक जगह पे, ठीक है, तो मेरा जो कन्फ्यूजन होगा क्या होगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, राइट, है ना। कि एक आपने कई जगह आप सुनते होंगे कि भाई जो मेरा कन्फ्यूजन, बेस लाइन कन्फ्यूजन, राइट। तो बेस लाइन कन्फ्यूजन क्या होता है कि अभी आपका स्टैंडर्डाइज कन्फ्यूजन आपने आप हर जगह का कन्फ्यूजन एक जैसा हो, राइट। ऑल द कंसिस्टेंस, मेरे पास ये 100 ब्रांचेस हो, 200 ब्रांचेस हो, 1000 ब्रांचेस हो, ठीक है, हर एक डिवाइस में जाके चेंजेस करना इज नॉट, इफ यूर स्मॉल नेटवर्क इज फाइन, ओके, बट आपके पास 100,000 डिवाइसेस हैं, देन इट्स नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो, राइट। और हो सकता है कि मैंने कोई स्क्रिप्ट दी, मेरे पास 10 बंदे हैं, ठीक है, एक अलग तरीके से डाल देगा, दूसरा कन्फ्यूजन अलग तरीके से डाल देगा, तो देयर इज अ चांसेस हो सकता है कि आप मतलब उसमें कुछ चीज छूट जाए, राइट। तो यदि हम लोग कंसिस्टेंट कन्फ्यूजन चाहिए हमें, तो हम यदि एमपीएलएस सॉरी एसडीएन का यूज करेंगे, देन वी कैन पुट द कॉमन कन्फ्यूजन इन ऑल द डिवाइसेस, राइट। तो ऐसा नहीं कि मतलब एमपीएलएस खत्म हो गया, ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि आपका अंडरले अभी भी आपको एमपीएलएस या इंटरनेट के थ्रू लेकर के जाना पड़ेगा। दिस इज जस्ट फ्यू लाइक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वी टॉकिंग अबाउट। एनी एनी क्वेश्चन गाइस, और क्लियर अभी तक? yes, we are clear. यस सर। ओके, तो डिपेंड करता है सिनेरियो, ओके, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या सिनेरियो है, ठीक है। मैंने आपको जो सेंट्रलाइज वाला बताया था उसमें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि सेंट्रलाइज इंटरनेट ले करती थी यूज, ओके। एंड अब धीरे धीरे क्योंकि फायरवॉल की रिक्वायरमेंट हर जगह आपको फायरवॉल डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल डालना पड़ेगी, तो आपको हर एक जगह चाहिए, तो राइट, तो उस तरीके से भी कई कंपनियां यूज करती हैं, कई कंपनियां नहीं करती हैं, ठीक है। अभी का सिनारियो में ऐसा है ना कि मेरा ईमेल वगैरह सब वो 365 पे है, सो आई नो नीड टू गो एंड डिपेंड ऑन माय सेंट्रलाइज सर्वर, और वो सब क्लाउड पे है मेरा, सो दैट करेक्ट, इज व्हाई आई डोंट वांट टू यूज माय एमपीएलएस बैकबोन जस्ट टू सेंड माय इंटरनेट ट्रैफिक, और वहां से मैं डेटा सेंटर से इंटरनेट पाता हूँ। इसके लिए मेरा अगर लोकल इंटरनेट कोई ब्रॉडबैंड भी है और एमपीएलएस भी है और एनी डेडिकेटेड इंटरनेट, देन आई कैन डायरेक्टली यूटिलाइज दैट। बहुत सारे एप्लीकेशन मेरे क्लाउड पे करेक्ट, माइग्रेटेड है, लाइक 365। करेक्ट, बिकॉज ऑफ द इंजीनियर रिक्वायर, राइट, दे कैन पुट देयर थॉट्स बेसिक्स, राइट। आपको क्या मतलब कहाँ से क्या बेनिफिट मिल सकता है, कहाँ से क्या बेनिफिट नहीं, बिकॉज ऑफ दैट भी एवरी कंपनी रिक्वायर इंजीनियर्स, राइट। सो डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, सिनेरियो क्या है, उसके हिसाब से अपना वो डिवाइसेस को आप प्लेस कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, राइट। ओके, चलते हैं।
ओके तो जब हमारा वर्षा का जो HDVN की हम बात करते हैं, ठीक है, हमने जस्ट भी टॉक अबाउट कि किस तरीके से लेगेसी में और इंटरनेट सर्विसेज दे रहे थे और या सेंट्रलाइज के थ्रू जा रहे थे, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि भाई सेंट्रलाइज जो कंट्रोल प्लेन एग्जैक्टली किस तरीके से काम करेगा, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो कंट्रोल प्लेन है, जो आपका जो RR है, इट इज एक्टिंग एज ए राउटर इफेक्टर, राइट। जो हमने डिस्कस किया था ना कि लास्ट कॉल में भी, कि लास्ट सेशंस में, जो आपका जो RR कंट्रोलर है, कंट्रोलर इज एक्टिंग एज RR, राइट। एंड इट कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन कि भाई मुझे A लोकेशन से B लोकेशन जाना है, ठीक है। देन इट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन कि मेरा कंट्रोल ट्रैफिक RR के थ्रू इंफॉर्मेशन आपको पास करेगा, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट सुना है पहले? एक मिनट ना, आपको दिखाता हूँ। ये वाला स्लाइड आप देखो, ठीक है। यदि मेरे पास एक कंट्रोलर है यहाँ पे, ये मेरा कंट्रोलर है, मिनट, दिस माय कंट्रोलर, है ना। इसके अंदर इंटरफेसेस हमने कंट्रोल ऑनबोर्ड किया था। तो अभी हम लोग इंटरफेस भी देखेंगे, ठीक है, हमने जो बोला है, ठीक है। ये मेरे पास ट्रांसपोर्ट हो गया, इंटरनेट का ट्रांसपोर्ट का सेपरेट VR बन गया, MPLS का ट्रांसपोर्ट का सेपरेट VR बन गया, राइट। ओके। और एक मेरा क्या बन जाएगा, एनालिटिक्स की तरफ बन जाएगा, ओके। और मेरा कोई एग्जांपल, मेरे पास 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके। तो इसका एक कंट्रोल VR इसके साथ में बन गया, एक और है सेकंड है, तो इसका एक और बन जाएगा इसके साथ में, ठीक है। इसका LAN 1 सेपरेट हो गया, इसका LAN 2 सेपरेट हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मेरा कॉमन यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बट जो मेरी टनल बनेगी, ओके, एक तो मेरे कंट्रोल टनल बनेगी, जो भी कंट्रोल टनल बनेगी किसके साथ में बनेगी, अपनी कंट्रोलर के साथ में बनेगी, ठीक है। और डाटा टनल बनेगी किसके साथ में, ब्रांचेस के साथ में, जिसको हम लोग बोलते हैं DTY टनल्स, ठीक है। मैं एक बार लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक मिनट, हाँ मुझे जस्ट एक चीज समझना है। ये हाँ कंट्रोलर है, ओके, लेट्स से ये मेरा हाँ ब्रांच है। हाँ। ब्रांच से आपने 2 टनल, ये क्या टनल बनाए हैं अपने, कंट्रोल टनल। कौन सा? ये, हाँ, कंट्रोल टनल है, ठीक है। इसमें क्या होता तो है ये, कि हाँ आपने जैसे MPLS का पी का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है। हाँ पी में क्या होता है कि आप जैसे पी में क्या होता है कि आपका जैसे मान करो ये पी है, ठीक है। और ये कहीं पे आपका RR है, और ये कहीं पे दूसरा पी है, करेक्ट। मान के चलो, है ना। तो ये क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन फॉर्म होता है RR के साथ में, और इसके साथ में फॉर्म होता है। हर जितने भी पी होंगे मेरे, क्या करेंगे कि एक एम्प्लीफिकेशन फॉर्म होते हैं, राइट, है ना। बराबर। ओके। और हर एक कस्टमर के लिए क्या करते हो आप, ये मेरे जो भी कस्टमर VRF बनाऊंगा, मान के वीआरएफ चलो कि मेरे बनाते VRF बना है, मतलब मेरे पास 1 है, 2 है, ठीक है, जो भी मतलब VRF होगा, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, RT अटैच करता हूँ, है ना। हैं। RT अटैच हो जाएगी मेरे पास, है ना। राउट डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, राउट टारगेट हो गया, मतलब मेरा, ठीक है ना। बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, ये मतलब आपका फुल मैस है या हब एंड स्पोक है, आप क्या करते हो वही करते हो, है ना। अब एक्चुअल देखा जाए तो जो आपका जो पी का फंक्शन था, ठीक है, जो पी का फंक्शन उठा करके क्या कहाँ पे शिफ्ट कर दिया आपने, सी में शिफ्ट कर दिया, ओके, ठीक है। ठीक है। अब क्या हो गया कि ये जो है मेरा MPPG बना रहा है, ओके। ये मेरा जो VRF है, ये मेरा इसके अंदर मैंने RT RD अटैच कर दिया इसके अंदर में, ठीक है। अब सेम ओके। RT RD यहाँ पे भी ये सब ऑटोमेटिकली होगा, मतलब मुझे मैनुअली कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे क्या करते थे, कोई एक इंजीनियर होगा, वो अपनी स्क्रिप्ट बनाएगा, फिर वो इम्प्लीमेंट करेगा 1 by 1, राइट। यहाँ पे मतलब मुझे यहाँ पे वीआरएफ बनाना पड़ता था, 2 अलग अलग करेक्ट, कस्टमर के लिए वीआरएफ है, और 2 RDRT टैग करता हूँ मैं। और सेम अगर करेक्ट, मुझे रिमोट पी पे भेजना है तो VPN V4 से वो RT इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार के वो पर्टिकुलर VPN के राउट्स आ जाते थे। करेक्ट, तो अभी करेक्ट, ठीक आपने है। यहाँ पे क्या किया, ये जो ब्रांच का राउटर है, यहाँ से आपका ये कंट्रोलर इट एक्ट्स एज अ राउट रिफ्लेक्टर फॉर दैट। पेयरिंग आपका करेक्ट, ब्रांचेस का सब RR के साथ होगा, एंड हाँ, RR विल बी द बेस्ट राउट टू ऑल योर ब्रांच राउटर, करेक्ट? ऐसा करेक्ट, ही है ना? करेक्ट, करेक्ट। मतलब ओके। आप यदि आप समझना चाहोगे तो आपको इसमें, आप यदि इसके साथ में कंपेयर करोगे ना, देन यू विल कोरिलेट कि मतलब एक्चुअल में चल कैसे रहा है ना। तो आप समझ लो कि ये मेरे एक टाइप से आप यदि कोरिलेशन करना चाहो तो आप हर एक जो सी है अपने आप में पी जैसा काम कर रहा है, ठीक है।
apart of P, it has the other functionality also, जैसे firewall का function भी इसके अंदर में आ गया है ना, एक P का function आ गया, firewall के features डाल दिए, ठीक है. There is a multiple things also because ये software define है ये, ठीक है. इसमें मतलब बट ये जो CP है, हम्म, this CP branch one router, it's a वर्सा का router, right? Device? इसमें और यार ये वर्सा इसमें क्या होता है कि जो सीपी इज नॉट ओनली द वर्सा, इज लाइक वर्सा का सीपी चलेगा, ठीक है. इसमें दिस इज 5-6 सर्टिफाइड वेंडर्स हैं, ठीक है. जैसे कि एडवांटेक इज वन एग्जांपल. एडवांटेक एक वेंडर है जिसका सीपी चल सकता है, डेल का चल सकता है, लेनर का चल सकता है, ठीक है. सो दिस इज 5-6 सर्टिफाइड वेंडर. उसके अलावा भी आप उसको वीएम पे भी चला सकते हो, उसको सीपी को बना सकते हो, ठीक है. तो इट इज ओके, नॉट कि बट वर्सा का OS सीपी वर्सा का होगा, रहेगा. है ना. हाँ, ओएस वर्सा का, सॉफ्टवेयर वर्सा का रहेगा. हार्डवेयर मतलब मल्टी किसी भी वेंडर का मतलब चल सकता है जो कि सर्टिफाइड हो, या तो वीएम पे चला लो आप, जो भी x86 वाले जो हार्डवेयर है उसके पे चल सकता है, ओके, गॉट इट. ठीक है. तो आप यदि कंपेयर करना चाहोगे तो जस्ट आप एक पी से कंपेयर करोगे ना, तो आपको यू विल गेट इजीली अंडरस्टैंड कि ठीक है कि किस तरीके से मतलब ये सेपरेट वीआरएफ हो गया, सेपरेट वीआरएफ हो जाएगा, ठीक है. So मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम सर, बट हाँ, अरुण कुमार. अरुण जी, हाँ. सो अरुण जी, जस्ट टेल मी वन थिंग. लेट्स से मेरा हाँ, लेगेसी एमपीएलएस नेटवर्क है. आई ऑलरेडी हाँ, हैव अ सी माय सी इज पेयरिंग विद द पॉप लोकेशन. मतलब मेरा दो लोकेशन है, एक मुंबई एंड बैंगलोर. ओके, मेरा खुद का सी है लेगेसी में, एंड आई एम यूजिंग एमपीएलएस एज अ बैकबोन. अभी व्हेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस वर्सा का राउटर, सो ये डू आई नीड टू रिप्लेस दैट एग्जिस्टिंग सी, और आई कैन जस्ट connect that C, this new router behind that C? एक मिनट ना, जिसमें आपका क्वेश्चन करेक्टली समझता हूँ, ठीक है. आपका मान के चलो एक लोकेशन हो गया, ये आपका बैकबोन है, कोई भी मतलब मान के चलो टाटा का, भारती का, या हाँ, कोई किसी का भी भी हो. आपने ले रखा है, राइट, है ना. आपने करेक्ट. यहाँ पे एक लास्ट माइल आ गया, यहाँ पे आपका एक सी है ना. मेरा सी और है, करेक्ट. है ना, एक सी आपका यहाँ पे है, ठीक है. ये मेरा अब लेगेसी है. ये लेगेसी वाला है आपका, है ना, ये सीपी हाँ, हो गया आपका, करेक्ट, है ना, ये सीपी. सीपी हो हाँ, गया, ओके. एक सीपी आपका यहाँ पे हो गया, करेक्ट, ओके. हाँ. अब जैसे जो आपका एचडीएन जो लोगे आप, आपका ऑन प्रीमाइसेस खुद का बनाना चाहते हो कि किसी सर्विस प्रोवाइडर से लेना चाहते हो? चलो क्लाउड पे लेता हूँ, या फिर सर ठीक है, ऑन प्रीमाइसेस मान के पकड़ चलो लीजिए. कि जैसे आपका टाटा से लिया आपने एग्जांपल, ठीक है, तो उसका एक हेड एंड कंपोनेंट रहेगा, राइट. हेड एंड होगा जिसमें कि आपका डायरेक्टर होगा, कंट्रोलर होगा, सब होगा, राइट, ओके. तो मैं कंसीडर करता हूँ कि ये मेरा आपका कंट्रोलर है, ओके. तो आपको जब चेंज करना होगा तो क्या करोगे कि आपका हो सकता है कि अंडरले कॉमन हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है. बट आपने एक यहाँ सी ले लिया और सेम फिजिकल लिंक यहाँ पे शिफ्ट कर दी, सेम फिजिकल लिंक यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे आप दूसरे एचडीएन सीपी के ऊपर में. और जो इसकी कन्फ्यूजन होगी उसको आप टेम्पलेट बना करके यहाँ पे शिफ्ट कर दो, जो कन्फ्यूजन यहाँ पे होगी उसको टेम्पलेट बना के यहाँ पे शिफ्ट कर दो. तो ये आपका इस तरीके से माइग्रेशन प्लान कर सकते हो. नहीं, मेरा मेरा कहने का पॉइंट क्या है, सी वेयर आई एम हाँ, गेटिंग कंफ्यूज हियर इन दिस सिनेरियो ना. सी मेरा हाँ, अगर एमपीएलएस नेटवर्क है, आई एम हैविंग माय ओन सी राउटर एग्जिस्टिंग हाँ, में, हाँ, यहाँ पे मेरा हाँ, खुद का वीआरएफ है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है वेयर हाँ, माय ऑल लोकेशंस आर जियोग्राफिकली कनेक्टेड वाया माय एमपीएलएस, और एमपीएलएस मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ. आई मीन टू से मेरा खुद का राउटर पे मैं मल्टीपल वीआरएफ बना रहा हूँ, ठीक है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट अच्छा, ओके, कस्टमर. ओके, आप खुद का एमपीएस मैनेज कर रहे हो, ओके, हाँ, हाँ, यस, मैं मेरा खुद का एमपीएलएस मैनेज कर रहा हूँ. सो यू ट्राई टू ओके, अंडरस्टैंड, अगर हाँ, मेरा खुद का मेरा जो पी है वो P/P है मेरा, बेसिकली इट इज हाँ, सी बोलो या P/P बोलो, ठीक है. हाँ, आई हैव 4 कस्टमर्स, और मेरा हाँ, इंडिया में लेट्स से आई हैव 4 हाँ, लोकेशन पे सेम मेरे 4 वीआरएफ्स है. ओके, हम्म, अभी हम्म, मुझे इफ आई वांटेड टू मूव एंटायर थिंग ऑन टू द एसडी वैन, हम्म. अभी ये सिनेरियो में मेरा अंडरलाइन पे एमपी बीजीपी मेरा स्टार्ट मेरे खुद के पी से हो रहा है, बिकॉज आई एम देखो, करेक्ट, समझ गया, मैं खुद एमपीबीजीपी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार रहा हूँ वीआरएफ के लिए. अब करेक्ट, जब मैं ये नया नया सीपी इंट्रोड्यूस करूंगा एचडी वैन का, तो मुझे वहां पे सेम वीपीएन वी4 एड्रेस फैमिली भी करना पड़ेगा. सिमिलर इसमें अगर मैं उसको आपको इंपोर्ट. आपको आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है. ओके, वो क्या, हाँ, ये सब ऑटोमेटिकली होगा इसमें, ठीक है. आपको सिर्फ जैसे इसमें क्या होगा, जो कंट्रोलर होगा आपको कहीं ना कहीं कंट्रोलर प्लेस, हेड का जो आई थिंक आपने फर्स्ट सेशन मिस कर दिया, सेकंड सेशन उसमें हाँ, हमने जो बताया था कि भाई आपका पहले हेड एंड आपका बिल्ड होना चाहिए, ठीक है. किसी भी नेटवर्क के लिए ना ये हेड एंड कंपोनेंट है. मतलब कोई भी और जैसे मान लो आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको सबसे पहले उसका हेड एंड कंपोनेंट बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है. दिस सिंपल, एक सिंपल तरीके से बना हुआ है. तो ये आपका ये कंपोनेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है. चाहे खुद ले लो, ऑन प्रीमाइसेस ले लो, या तो क्लाउड पे ले लो, या तो किसी सर्विस प्रोवाइडर से ले लो. 2-3 ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है.
आपका एक डायरेक्टर रेडी होना चाहिए, एक किनेटिक्स जहाँ पे आपके लॉक्स आएंगे, और एक कंट्रोलर होना जो चाहिए जो आरआर टाइप का काम करेगा आपका, है ना। ये एक बेसिक चाहिए। ये जो कंट्रोलर है किसी न किसी पी से कनेक्ट होगा, मतलब एक टाइप से एक आपने कोई भी फिजिकल लिंक ले ली, मतलब अंडरले ले लिया, यहाँ भी एक अंडरले चाहिए, ठीक है, यहाँ भी एक अंडरले चाहिए, है ना। अब आपका आप यहाँ पे एमपीबीजी पे चला रहे हो, मल्टीपल वीआरएफ कर रहे हो, इस चीज को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टनल टेक्नोलॉजी है। ये क्या करेगा, टनल इसके बीच में बनाएगा, इसको सिर्फ ईआईपी एड्रेस चाहिए, ईआईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है, इसके बीच में टनल फॉर्म करेगा ये, ठीक है। आप अंदर क्या चला रहे हो उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या ना ऐसा मैं काम ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मेरा एग्जिस्टिंग टी राउटर है जिसमें 4 वीआरएफ है, आई कैन टेक वन मोर वीआरएफ जस्ट टू कनेक्ट माय न्यू SD-WAN सीपी राउटर, और उसके थ्रू मैं सेपरेट ये एमपीबीजीपी सेशन रन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लेगेसी को तो डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता, वो तो मुझे अंडर के लिए चाहिए, बट हैविंग अ सेपरेट वीआरएफ मैं उसको फॉर्म कर सकता हूँ ना, सेपरेट पैरेलल बैकबोन फॉर SD-WAN। हाँ, यहाँ पे आपने एक सेपरेट ले लो, उसके अंदर भाई जैसे मान के चलो कि एक कस्टमर की आरटी चाहिए, उसकी आरटीआई में इंपोर्ट कर दो। आप जैसे मान के चलो कि मैं किसने बताता हूँ, ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने का। यू गॉट माय पॉइंट राइट। मेरे पास एग्जिस्टिंग, हाँ ये पकड़ के चलो, ये टी राउटर है मेरा, है ना, ये आपका पी राउटर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ भाई ये आपके पास ये पी राउटर ले लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे 4 कस्टमर बना दिया आपने, है ना। हाँ ओके, हाँ ठीक है, और और रिमोट लोकेशन पे ये 4 है, यहाँ भी 4 है भाई, ठीक है। अभी आपको क्या अब ये करना है मेरा कि लेगेसी है, लेगेसी समझ में आ गया मुझे, ठीक है। हाँ अब आपको क्या करना है कि लेगेसी में 4 कस्टमर, ये जो 4 वीआरएफ हैं, मुझे क्या करना है कि एमपीएलएस में डालना है, सॉरी एचडीवन में डालना है, मतलब पुराने सीपी का हटा करके मुझे एचडीवन का कुछ बनाना है, करेक्ट बैकबोन, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए भाई, मेरे पास एक तो हेड एंड सेटअप मेरे पास बिल्ड होना चाहिए। हेड एंड मतलब कहीं ना कहीं ये जो हेड एंड होगा कहीं ना कहीं किसी से पी से कनेक्टेड होगा, राइट। मैंने एक नई वीआरएफ ले ली है, ओके, एग्जांपल मैंने एक वीआरएफ ले ली जिसका नाम रख दिया मैंने एचडीवन, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा कि भाई मेरे पास इस कस्टमर को शिफ्ट करना है ना। तो मैं 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको वीआरएफ में कन्वर्ट कर दूं, या तो मैं जस्ट आरटी को इंपोर्ट कर दूं और एक्सपोर्ट कर दूं। तो मेरे जो भी ब्रांच होगी इसकी कनेक्टिविटी कहां से बिल्ड हो जाएगी, मेरे कंट्रोल के साथ बिल्ड हो जाएगी, राइट, हाँ है ना। अब मतलब इस ब्रांच को नाउ रिचेबिलिटी है कंट्रोलर की, राइट, ओके। और यहाँ पे भी मुझे सेम तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपकी आरटी होगी, ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी इसकी आपने आरटी इंपोर्ट कर दी, तो इसकी भी रीचेबिलिटी हो गई। अभी आपका काम खत्म हो गया, बैकबोन में क्या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप यहाँ से सीधे अपने टेम्पलेट जो कन्फिगरेशन है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, और जैसा चाहिए आपको वैसा नेटवर्क डिजाइन करके इंप्लीमेंट कर सकते हो अभी। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर मैं नया SD-WAN एग्जिस्टिंग बैकबोन पे बिल्ड कर रहा हूँ, तो मैं एक सेपरेट वीआरएफ लेके उसको पैरेलली बिल्ड कर सकता हूँ, रादर देन डिस्टर्बिंग माय एग्जिस्टिंग नेटवर्क, और 1 by 1 जो भी मेरे वीआरएफ है उसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ उसमें, करेक्ट। हाँ, तो दैट वैसा कर मेरा सकते जो हो, ये वैसा भी तो कर आपको, सकते हैं, राइट। हाँ, वो तो आपको बैकबोन में किस तरीके से मतलब प्ले करना है, ठीक है, ये अप टू यू, ठीक है। आप चाहो तो नई वीआरएफ के साथ में जाओ, चाहे एग्जिस्टिंग के साथ में जाओ, बट आपको जो कंट्रोलर जहाँ पे लोगे ना, एक वीआरएफ ले लो नई, ठीक है, और वहां पे वो आरटी इंपोर्ट कर दो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, एग्जैक्टली मतलब मैं ठीक है। पैरेलली एक नया बट ऐसे बेस्ट डेडिकेटेड, प्रैक्टिसेस लोग क्या करते हैं कि जैसे मान के चलो कि मेरे पास कोई वीआरएफ है, ठीक है, जैसे मतलब जैसे जो प्रोवाइडर में क्या किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट करेंगे, जैसे एग्जांपल आपका कोई बैंकिंग कस्टमर है, ठीक है, या मान के चलो एबीसी कस्टमर है, ठीक है, मैंने दे दिया एबीसी कस्टमर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे एबीसी वीआरएफ का नाम है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, एबीसी तो वीआरएफ है, मतलब मेरे पास में, ठीक है। अब मैं नई वीआरएफ बनानी होगी तो मैं क्या करूंगा, एबीसी उसके अंदर में जैसे ए बी सी, और उसके साथ में ऐसा कर दूंगा एचडी वैन करके डाल दिया मैंने वीआरएफ का नाम। बट मेरे अल्टीमेटली जो आरटी आरडी है उसी के ऊपर कम्युनिकेशन होना, राइट। आपने आरटी आरडी उधर की जो कंट्रोल वाली आरटी आरडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रखी है, आपका कंट्रोल के साथ में रिचेबिलिटी होगी आपके साथ में। हाँ, बट इसमें एक चैलेंज ये भी आ सकता है ना कि ओवरनाइट में सब पूरा बैकबोन को तो माइग्रेट नहीं कर रहा हूँ, हो नहीं, सकता आप है स्लो मेरा स्लो करो ना, क्या स्लोली करो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, आपकी जहाँ पे पार्शियल, रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से कर। हाँ भाई, ओके मुझे तो एक कस्टमर करना है, मैंने
देखो ओवरले और अंडरले का कोई मतलब ही नहीं है। जब मुझे इस ब्रांच को बराबर। करना है, मैंने इसकी आरटी इंपोर्ट कर दी, इस लोकेशन को माइग्रेट कर दिया, अदर दूसरे लोकेशन का नंबर आया उसको इंपोर्ट कर दिया, माइग्रेट कर दिया। यदि क्या होता है कि अब ऐसा भी सिनारियो हो सकता है कि भैया आपकी आधी लोकेशन एमपीएलएस पे है और आधी लोकेशन आपकी SD-WAN। एचडीवीएन पे है ना। हाँ उस समय एग्जैक्टली। क्या करना हाँ पड़ेगा, दो एक आपको ये तो गेटवे वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, या तो कोई जो हब लोकेशन उसको गेटवे बना दो आप, ठीक है। जो कोई हब राउट लोकेशन लिख होगी, करके भी कर सकता हूँ ना उसमें, हाँ तो वो क्या करेगा, इंटरनल आप जब फायरवॉल के गेटवे, थ्रू। नहीं नहीं, वो एचडीवीएन के सीपी से लीकिंग हो जाएगी, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। हो तो जाएगा। आपका ओके। जैसे हाँ उससे भी हो जाएगा, एमपीएलएस के सॉरी एचडीवीएन के सीपी से भी हो जाएगा, या तो आपके पास एक गेटवे डिवाइस बनानी पड़ेगी, आपको एक डिवाइस लेनी पड़ेगी जो उसको गेटवे डिफाइन कर लो आप, ठीक है। तो उसमें मल्टीपल कस्टमर्स को आप एक गेटवे के थ्रू राउट कर सकते हो। मतलब वहां पे गेटवे पे क्या होगा, एक आपका एमपीएलएस का लेगा आएगा, एक एचडीवीएन के लेगा आएगा, ठीक है। और हर एक कस्टमर के लिए सेपरेट सेपरेट लेन बनते जाएंगे यहाँ पे, ओके, ठीक है। मतलब मेरा नॉन एसडी वैन टू एसडी वैन साइट का कम्युनिकेशन के लिए आई नीड टू हैव ना कॉमन गेटवे। गेटवे, हाँ, या तो गेटवे ले लो, या तो क्या दूसरा तरीका है कि हर एक कस्टमर का जो हब लोकेशन है, ठीक है। मान चलो कोई कस्टमर उसका लोकेशन ए जो हब लोकेशन है, उससे उसका एमपीएलएस का राउट लिख कर दो, ठीक है। एमपीएलएस का राउट लिख कर दो, तो वहां से भी आप का कम्युनिकेशन हो जाएगा, ओके, ठीक है। ठीक है, गॉट इट। तो अब हमने गाइस ये जो पढ़ा है, ठीक है, कंट्रोल प्लेन, डाटा प्लेन, ठीक है। आपने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा है कि जैसे भाई जैसे ये एक सिनारियो है, ठीक है, जिसमें आपके पास एक लिंक है eth1 पे आ रही है, दूसरी लिंक आपकी eth0 पे है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आप टनल बनानी है, मतलब मुझे भाई टनल बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लूप बैक 0 ले लिया, मतलब मैंने यहाँ पे भी एक लूप बैक 0 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका सोर्स को क्या हो गया, लूप बैक 0 हो गया, डेस्टिनेशन क्या हो गया, इधर का लूप बैक 0 हो गया, राइट। तो यदि वन ऑफ द पाथ में डाउन भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, में टनल अप रहेगा, राइट, है ना, क्योंकि मेरे पास अल्टरनेट पाथ से मतलब मेरा कनेक्टिविटी अप है, ओके। ये आपका हो गया लेगेसी में, इस तरीके से टनलिंग मतलब बनती है, राइट। अब हम जब एचडीवीएन पे जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि आपका जो eth1 है, ठीक है, आप एक उससे माइनस कर दो। जो जो वीएनआई इंटरफेस क्या होता है, वीएनआई इंटरफेस आपको फिजिकल इंटरफेस का लॉजिकल एंटिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो eth1 है वो इक्विवेलेंट टू वीएनआई 00, ठीक है। यहाँ पे जो eth1 है इक्विवेलेंट टू वीएनआई 00, ठीक है। यहाँ पे इसका eth2 है आपका वीएनआई 0/1, ठीक है। इस ये आपके दो फिजिकल इंटरफेस हो गए। वीएनआई मतलब इसके फिजिकल इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है वर्सा के, ओके। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना है लूप बैक अननंबर्ड? लूप बैक अननंबर्ड आईपी एड्रेस सुना है सर, लूप बैक अननंबर्ड आई जैसे डोंट आप नो। क्या कहते हो, जो टर्म बनाते हो ना, तो उसमें कहते हो कि लूप बैक अननंबर्ड करके जैसे जो इंटरफेस होगा, ठीक है। अब मेरा इंटरफेस का कुछ भी आईपी एड्रेस हो, ठीक है, मैंने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्या कर दिया, सोर्स में डिफाइन कर दूंगा कि भाई मेरा जो इंटरफेस है वो उसको लेकर के सोर्स बनाएगा, मतलब, ठीक है। इसमें भी इसी तरीके से कॉन्सेप्ट होगा। क्या होगा कि बताता हूँ आपको मैं, ठीक है, एक कंफ्यूजन हम लोग देखेंगे। आईपी तो अननंबर्ड में यही होता है ना सर कि जो फिजिकल मतलब एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे आईपी दिया हुआ है, उस आईपी को हम टनल एज टनल सोर्स यूज करते हैं वहां पे आईपी। करेक्ट 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 करेक्ट, ओके। ठीक है। एक मैं लॉगिन कर लेता हूँ किसी सी के अंदर में, ठीक है। ये मैंने ना 2 ब्रांचेस ऑनबोर्ड किए, इसका मैं लगे तो आपको जो स्टेप बाय स्टेप्स है ना वो जब हम लोग ऑनबोर्डिंग पे पहुंचेंगे तब आपको मैं उसका दे दूंगा। तो आप लोग भी एक बार अपनी जो लैब बनेगी ना, अपना हेड एंड का जो पार्ट है आपको चाहिए, तो आप लोग एक बार जो पुराना वीडियो है उसको थ्रू नेक्स्ट जब नेक्स्ट क्लास होगा ना, या तो नेक्स्ट वीक तक एक बार अपना पूरा बिल्ड कर लेना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ओके। यदि उसमें कुछ भी डाउट आता है या कहीं भी आप अटकते हो तो उसमें हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। आपको 2 घंटे लगेगा, करीब 1 घंटा भी लग सकता है, 1 घंटे के आसपास तो लगेगा आपको ये बिल्ड करने में सेटअप, ठीक है। आपका एक बार वन टाइम एक्टिविटी हो गई तो फिर इन जो हेड एंड वाला पार्ट कोई छेड़ता नहीं है, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे, एक टनल पे थे, ठीक है। यदि मुझे इंटरफेस देखना है वर्सा के अंदर, ठीक है, तो मैं क्या कमांड डालूंगा भाई, ठीक है। सो इंटरफेस ब्रीफ डाल दिया, मतलब मैंने कि आपको इंटरफेसेस दिख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल, यस सर। है ना। तो ये जो इंटरफेस होगा VNI 0/0, ये VNI इंटरफेस दिख रहा है, ये आपके फिजिकल इंटरफेस है, ओके। और एक इंटरफेस दिख रहा है आपका, टीवीआई इंटरफेस दिख रहा है आपको,
है ना। और आपको एक दिख रहा है पीटीओ इंटरफेस, और एक हो गया आपका एक ETH0। इतने इंटरफेस दिख रहे हैं, है ना। अच्छा। VNI, TVI, PTVI और ETH0, ठीक है। यही आपके भी इंटरफेस आपको इसमें विजिबल हो रहा है, राइट। ओके, तो ये सर यहाँ पे एक एक इंटरफेस दो बार दिखने का क्या है कि VNI 0/0 और VNI 0/0.0 दोनों पे मेक एड्रेस आ रहा है, दोनों पे का स्टेटस आप पा रहा है, इसका क्या मतलब? ये जो आप जैसे जूनिपर में क्या होता है ना, जैसे यूनिट डिफाइन करते हो ना, यूनिट, हाँ हाँ। ठीक है। देखो कन्फ्यूजन दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। जूनिपर में ना इस तरीके से कन्फ्यूजन आता है, एक्चुअली में देखा जो कोड जो है ना वो जूनिपर का ही है, ठीक है। यस, दिस इज जूनिपर में जब भी इंटरफेस बनाते हैं तो उसमें अपन यूनिट डिफाइन करते हैं, राइट? हाँ, वो वैसे ही है ये, ठीक है। ओके। ओके, पूरा का पूरा जूनिपर जैसा लग रहा है ना। तो ऐसे कमेंट आएगी आपको, ठीक है। ये देखो यूनिट डिफाइन किया हुआ है ये, ठीक है। ओके, ये यूनिट क्या चीज होती है? क्या करेंगे कि मतलब जो जैसे कि मुझे विलेन टैग करनी है ना, जैसे कि मतलब मान के चलो कि विलेन 0, ठीक है। मतलब एक एक विलेन 0 बनाया मैंने, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, राइट। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट के थ्रू, है। काइंड ऑफ ठीक है। सब इंटरफेस सर। सब इंटरफेसेस, ओके। ठीक है। यदि आपने कुछ भी नहीं बनाया तब भी आपका एक 0 तो रहेगा रहेगा, ओके। ठीक है। तो ओके, तो ये वीआर इंटरफेस क्लियर है गाइस। वीआर इंटरफेस क्या है? फिजिकल इंटरफेस है ना। ओके, यदि आप इस टोपोलॉजी में देखोगे तो यहाँ पे VNI 0 लिया है, यहाँ पे मैंने VNI 2 लिया है ना। इसका IP एड्रेस 10.10.1 है, 10.60.10.1 दे रखा है। तो जो भी फिजिकल इंटरफेस होगा उसका जो लॉजिकल एंटिटी उसको बोलेंगे VNI इंटरफेस, ओके। और मैंने जो फर्स्ट सेशन आपको एक दिन डेमो लिया था उसमें बताया था कि इसके टीवी इंटरफेस बनते कैसे हैं, है ना। ये टीवीआई इंटरफेस का सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। और मोस्टली आपको जो है ना वो उसी से निकलेगा, मतलब आपका, ठीक है। जो जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। को बताता हूँ आपको, इसमें डाला रखा है मैंने कहीं पे, एक मिनट ना। आपको जैसे बस वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कहाँ पे कहीं लिखा है मैंने, इस वाले पार्ट पे। ओके, यहाँ से चालू करते हैं हम लोग, है ना। पर अब इंटरफेस समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें किस तरीके से इंटरफेसेस आएंगे, राइट। ETH0 तो आपका कोई भी फिजिकल इंटरफेस होगा, ठीक है। मोस्टली जो क्या होता है कि जब जो आपका जो ये इंटरफेस में लॉगिन करोगे ना आप CP में, ओके। ये देखो आप, एक मिनट ना। ये दिख रहा है आपको ETH0, है ना। बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ग्लोबल, ग्लोबल में दिखा रहा है, राइट। दिस इज द पार्ट ऑफ ग्लोबल। तो जब कोई बंदा जाएगा, मतलब जैसे फील्ड इंजीनियर जाता है तो क्या करता है कि भाई उसको इनिशियली एक्सेस नहीं मिल रहा होगा ना, तो वो क्या करेगा, अपना कनेक्टिव लैपटॉप ETH0 पे डालेगा। इसको ये बोल सकते हो कि मैनेजमेंट टाइप्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है। ओके। ओके, ये आपका मैनेजमेंट इंटरफेस हो गया, ओके। और यदि आपको जस्ट रिप्रेजेंट करा ETH0 आपका इज फिजिकल, जो लाइनक्स का जो इंटरफेस है, इस तरीके से आपको दिखाता है कि ETH0 आपका इंटरफेस है, ठीक है। ये मोस्टली मैनेजमेंट के लिए आप इसको यूज करोगे, ठीक है। अब आपका दूसरा इंटरफेस है इसमें, अब देखोगे तो ये आपका TVI 0/2 एंड TVI 0/3, ठीक है। ये TVI 2 नंबर कहाँ से आया, ये 3 नंबर कहाँ से आया, राइट। TVI एक ग्लोबल टेनेंट आईडी निकलता है अपना, ठीक है। ग्लोबल टेनेंट आईडी इस डिवाइस का क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ठीक है। कहाँ से देख सकते हैं हम लोग, ओके। उसका 2 टाइम्स होता है, ठीक है, हमेशा।
तो यदि यहाँ पे 4 क्या रहा है, टीवी आईपी एड्रेस क्या रहा है, 2 4 एंड 5 आ रहा है, राइट? ओके, और फार्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए मेरा होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ ग्लोबल टेनेंट आईडी, और सेकंड जो टर्म बनेगी मेरी वो बनेगी ग्लोबल टेनेंट आईडी +1, राइट? सो यदि मेरा आप इस पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, टेनेंट आपका TVI 4 एंड 5, राइट? ओके, टेनेंट आईडी क्या होता है? बताता हूँ आपको मैं। ओके, जब हम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, हमने अभी शायद आपको मैंने बताया नहीं है ये वाला पर्सन। ओके, ये देख रहे हो, ये अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ना, ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपने आप एक ग्लोबल आईडी जनरेट करता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन आईडी। ओके, ठीक है, ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का एक तरीका है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एक नाम डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, नाम डिफाइन करने के बाद क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करता है ये। ओके, ये नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। तो मान के लो कि आप नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे तो उसका ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट कर देगा 3, ठीक है, ओके सर, ओके, या 4, ठीक है। तो जो आपकी टनल बनेगी, जैसे मान के लो कि यहाँ पे 3 है, तो आपकी टनल कैसे बनेगी, 6 एंड 7 बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टनल बन रही है 3, 4 एंड 5, राइट, ये कैसे बन रही है, ग्लोबल, ये जो फार्मूला है इसका, ठीक है, आपका 2 टाइम्स इनटू GTID, ठीक है। ये जो GTID नथिंग इज काइंड ऑफ दी, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन आईडी है, ठीक है। आप ग्लोबल टेनेंट आईडी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका 2 टाइम्स रहता है ये, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज बताता हूँ आपको मैं, एक तो हमने यहाँ पे क्लस्टर डिफाइन लेना पड़ता है कि क्लस्टर कौन सा, हमने जो याद है बनाया था क्लस्टर, सेम क्लस्टर ऑटोमेटिकली लेते हैं। एक राउटिंग इंस्टेंस आया आपका, ये गाइस, ये आपको थोड़ा सा देखना ध्यान से। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है टेस्ट लेन VR आ रहा है यहाँ पे, ओके। आप यदि इंटरफेस में जाओगे तो ये देखो टेस्ट लेन VR सेम VRF आ गया यहाँ पे, राइट सर, है ना। तो ये क्या होता है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम मान के चलो कि कोई बैंक का नाम है या ABC है, तो आपका ABC प्लस लेन VR अपने आप आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है, यस सर, ओके। यदि ऐसा रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे ऐसा कोई एक वायरलेस का लेन बनाना है कि जिसका ट्रैफिक मुझे कहीं दूसरी जगह नहीं भेजना है, ठीक है, सिर्फ लोकली रहे वो, ठीक है। तो मुझे क्या, जब हम लोग और ये बना देखोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनेबल किया ऑप्शन आ रहा है, इनेबल, करेक्ट सर, राइट, ओके। इनेबल करने से क्या हो रहा है कि इसके ऑटोमेटिकली RTRD ना बैकएंड में जनरेट कर देगा। मुझे चाहिए कि भाई मुझे RTRD नहीं जनरेट नहीं करना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव कर दूं मतलब मैं, ठीक है। तो आपकी RTRD नहीं जनरेट होगी, ठीक है। आरटीआरडी जनरेट नहीं होगा तो ये कंट्रोलर के साथ में MPBGP का सेशन नहीं बनाएगा, राइट? हाँ करेक्ट, ये क्या करेगा कि ये अपनी RTRD जनरेट नहीं करेगा, तो दूसरी लोकेशन पे नहीं जाएगा, इसका रूट लोकली रहेगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। क्लियर गाइस, है ना। ये मोस्टली कैश ट्रैफिक के लिए होगा अपना। हाँ, जैसे कोई कई जगह से रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई मुझे गेस्ट ट्रैफिक चाहिए, गेस्ट ट्रैफिक लोकली जाना चाहिए, वो कहीं भी नहीं जाएगा मतलब, ठीक है। आई डोंट वांट माय गेस्ट ट्रैफिक शुड बी गो टू द माय हेड ऑफिस और सम अदर लोकेशंस, ठीक है। मैं क्या करूंगा उस कंडीशन में, यहाँ पे जो VRF में बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, मुझे एक नई VRF बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वहां पे जब मैं नई VRF बनाऊंगा उस समय मतलब इसको इस तरीके से डिफाइन कर दूंगा मतलब, ओके। तो इस तरीके से जब मैं अभी बताऊं आपको मैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो उस पे जब हम कवर करेंगे, तो जस्ट मेरा ऑब्जेक्टिव इससे बताने का ये था कि आपका जो ग्लोबल टैलेंट आईडी है उसका 2 टाइम्स होता है, राइट। जैसे ये 2 है तो यहाँ पे 4 और 5 टनल नंबर है आपका। क्लियर गाइस, एक इतना बार, क्लियर है? हेलो, हाँ ये थोड़ा बोलिए। मेरा बाउंस चला गया, मुझे जस्ट अच्छा, अंडरस्टैंड ये करना है कि आपका फिजिकल जो डिवाइस पे लॉगिन किया है, एक बार हाँ, अभी ये डिफॉल्ट इंटरफेसेस यही आते हैं क्या, जो नहीं इथरनेट नहीं, 0/0 है? हाँ, देखो कैसा होगा, डिपेंड होता है फिजिकल बॉक्स कितना है आपका, ठीक है। जैसे मान के इसमें देखो बेनिफिट कैसा है, एक चीज दिखाता हूँ आपको मैं, आपको भी लगेगा कि यस दिस इज सॉफ्टवेयर, राइट। यदि आपका जैसे आप जब टेम्पलेट पे जाओगे ना, जब हम टेम्पलेट ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इंटरफेस है, ठीक है, अभी कितना इंटरफेस दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट 6 है, राइट। अब ओके, मैं यहाँ पे हाँ, मेरा ऐसा कोई हार्डवेयर इसमें 8 इंटरफेस है, तो मैं यहाँ पे 8 करूंगा, समझ रहे हैं मेरी बात।
यदि मेरे पास कोई ऐसा बड़ा हार्डवेयर जिसमें 10 इंटरफेसेस हैं तो मैं 10 इंटरफेस करूंगा। इस तरीके से आप चूज कर सकते हो मतलब। ठीक है। ठीक है। तो सर हाँ इसके अकॉर्डिंग VNI जनरेट होंगे फिर? हाँ, उसके हिसाब से जनरेट हो जाएंगे। तो अभी ये जो लेट्स अभी ये जो आपने राउटर लिया है इसमें 6 इंटरफेसेस है, ठीक है, हाँ करेक्ट। टोटल। हाँ तो अभी इसके अकॉर्डिंगली वो इंटरफेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हाँ ये अभी करेक्ट। इसमें। तो जो जो फिजिकल इंटरफेस होगा हमेशा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं जो फिजिकल इंटरफेस होगा, कोई भी एक एग्जांपल के लिए उठाता हूँ, ठीक है। कोई भी एक डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई भी एक हार्डवेयर, ठीक है, गूगल से ही, ठीक है। मान के चलो कि लेनर सीपी ले लिया, ठीक है। तो कोई इमेज उठा लें एक, ये आपका सीपी हो गया, है ना। दिख नहीं रहा सही तरीके से। तो जो जैसे मान के लो इसमें फिजिक इथ वन इस पे लिखा होगा, गिग 1 गिग 2 गिग 3 ऐसा लिखा होगा, राइट, है ना। तो जो गिग 1 होगा वो मेरे लिए वीना 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके जो गिग 2 होगा वो मेरे लिए वीना 1 होगा, ओके। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी मैपिंग होगी मतलब, VNI, ठीक है। ओके, सो VNI यदि स्टैंड फॉर फिजिकल इंटरफेस बेसिकली। करेक्ट, यस यस, ये मैंने आपको फर्स्ट जो इसके पहले स्लाइड बताई थी ना, उसमें ये बताया था कि आपका जो वीएनआई है इज रिप्रेजेंट टू फिजिकल इंटरफेस। ओके, और ये PVI एंड PLV। पीटीवीआई देखो दो चीजें, एक तो टीवीआई टनल हो गई, एक पीटीवीआई टनल हो गई, ठीक है। जो अच्छा पीटीवीआई ओके टनल बनेगी, जो पीटीवीआई टनल बनेगी सिर्फ कंट्रोलर के साथ बनती है ये, ओके ठीक है। ओके। और जो जो टीवीआई टनल है, ठीक है, ये भी आपके कंट्रोल के साथ में बन रही है, बट ये आपकी रुको मैं बताता हूँ आपको। हम लोग चलते हैं वन बाय वन, ठीक है। इसमें आप पहले समझ लो पूरा, ठीक है, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। हम लोग वन बाय वन पूरा समझ लेते हैं पहले, है ना। एक बार गो थ्रू कर लो, फिर एक बार फिजिकली लॉग इन करके सब डिवाइसेस पे ना एक डिवाइस पे आपको दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली कैसे बन रहा है। ये हमने पढ़ लिया था इथरनेट इथ0 में, कोई मैनेजमेंट में कोई 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 ऑप्शन, आपको कोई डाउट नहीं, राइट। टीवीआई में कोई डाउट है? टीवी वाला पार्ट क्लियर है? यस सर, बस एक एक थोड़ा सा डाउट था ये सर, जैसे ओके, कंट्रोल VR अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, अभी आप सिर्फ इंटरफेस बता रहे हैं, राइट? करेक्ट, अभी इंटरफेस बता रहा हूँ आपको मैं, ओके, ठीक हाँ, है। नहीं इंटरफेस तो ये क्लियर। है ना, ये क्या कर रहा है कि आप एक बस ये समझना है आपका टीवीआई कैसे आया, ठीक है। जैसे इसमें मेरा इंटरफेस जो टीवीआई 4 था, टीवीआई 5 था, राइट। टीवीआई 3 कैसे आया, टीवीआई 4 कैसे आया, ठीक है। यहाँ ओके, पे TVI जस्ट ये 3 समझना किधर है है? अभी आपको। सॉरी, टीवीआई 4 है, टीवीआई 4 एंड टीवीआई 5 है। यहाँ पे टीवीआई 4 एंड टीवीआई 5 आया, क्यों? यहाँ पे ग्लोबल आईडी कितना था? 2 था, राइट, है ना। उसका 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स प्लस 1, ये फार्मूला है इसका, राइट। मतलब कैसे 2 टाइम्स प्लस 1 कैन। अब अगर मेरा ग्लोबल आईडी दो टनल 2 बनी है। हुई है। हाँ, यदि मेरा ग्लोबल आईडी 2 है तो मेरा पहला टनल बनेगा, जो वीएक्स टनल बनेगा, वो बनेगा मेरा 4, ठीक है। दिस माई वीएक्स टनल, ओके। और ये मेरा जो है सिक्योर टनल बनेगा, ठीक है। दिस इज माई 2 टाइम्स प्लस 1, 5, अच्छा, 2 इसलिए टाइम्स 5 है। नंबर प्लस एडिशनल 1 इज उसका नेक्स्ट नंबर, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट मगर अभी करेक्ट अगर मेरा 7 है ग्लोबल आईडी, तो 7 into 7 14, हाँ मतलब 14 plus 15, मतलब 14 and 15 मेरा करेक्ट टीवीआई इंटरफेस रहेगा, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऐसे ही हाँ बनेगा। ओके, मैं वही कंफ्यूज हो रहा है, इंटू 2 बोले मैं समझ नहीं पा रहा था। नहीं नहीं, एक्चुअली में कैसा है, ये जो पीपीटी है ना, कहीं से मतलब इज नॉट सेम टू सेम, ऐसा नहीं है कि मतलब इसी डायग्राम से उठाया हुआ है, ठीक है। इट इज सम एक रेफरेंस है ये, दिस इज जस्ट वन रेफरेंस, ओके ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो टीवीआई 2 है, ठीक है, क्योंकि जो दिस इज नॉट एक्चुअल वन, ओके। एक्चुअल में हम जब चेक कंपेयर कर रहे हैं तो हम अपना जो लैब उससे कंपेयर करेंगे, राइट। हाँ, मतलब जो भी मेरा ग्लोबल साइट आईडी जो भी रहेगा, वो जो हाँ नंबर रहेगा उसका इंटू 2, करेक्ट। मतलब वो 14 हो गया, प्लस 1, मतलब 14 एक इंटरफेस हो गया मेरा टीवीआई। और उसके बाद का जो भी नेक्स्ट एड
14 + 1 15 होता है, तो 15 एक नया इंटरफेस रहेगा. So basically 2 interface for 2 tunnels. करेक्ट करेक्ट. ठीक है, तो इसमें क्या होगा अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, बस अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ लो कि जो टीवीआई टनल्स हैं वो कैसे बन रही हैं, राइट. अभी हम लोग कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन पे जाएंगे, ठीक है, कन्फ्यूजन चेक करेंगे कैसे कन्फ्यूजन आ रही है इसकी. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ ये क्लियर है, टीवीआई वाला पार्ट क्लियर हो गया, करेक्ट. हेमंत क्लियर है आपको? जी सर. सिर्फ एक पूछने का था, मैं थोड़ा पहले का मुझे पता नहीं, बट ये टीवीआई टनल यूज कहाँ पे होता है? सिर्फ कंट्रोलर के साथ कंट्रोल ट्रैफिक भेजने के लिए होता है या डेटा ट्रैफिक के लिए? ये जो टीवीआई टनल्स हैं, ठीक है, ये आपका इस पे कंट्रोल ट्रैफिक जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे देखो कंट्रोल ट्रैफिक टनल बनी हुई है ये. ठीक है, ओके. और जो डायनेमिक टनल अभी हम उस पे जाएंगे, जो डाटा के लिए जाएगी वो डायनेमिक डीटीवीआई बनेगी वो. ठीक है, ओके. तो है ना, तो अभी मैंने साइड टू आपको, साइड के बीच का. हाँ, तो मैंने आपको जस्ट बताने का ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो जैसे ये वीआर इंटरफेस जो लेन इंटरफेस बना, इसमें क्या था, ऑर्गेनाइजेशन नेम प्लस लेन वीआर बाय डिफॉल्ट आता है. दी मान के चलो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम आईसीआईसी बैंक है या कोई और बैंक, कोई कंपनी का नाम है, राइट. तो जो भी आप टेनेंट बनाओगे उसका नाम प्लस लेन वीआर ऐसा करके आ जाएगा. ठीक है, ये आपको मतलब बताने का ऑब्जेक्टिव मेरा ये था बस. ओके ओके. टीवीआई जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई ये जो टनल बन रहा है कंट्रोल के साथ में बन रहा है. ठीक है, ओके. हाँ, ये जो वीएनआई इंटरफेस था, याद है? एक मिनट ना, वीएनआई, अब हम लोग इसका वीएनआई के इंटरफेसेस की बात करते हैं. ठीक है, तो एक मिनट में इसके लैब पे जाता हूँ. ओके, इसमें देखो एमपीएलएस के लिए भी बना हुआ है ट्रांसपोर्ट, है ना. दिस माय एमपीएलएस ट्रांसपोर्ट, राइट. तो ये मेरा फिजिकल इंटरफेस है, राइट. ये मेरा फिजिकल इंटरफेस है, इट इज शोइंग एज एमपीएलएस इंटरफेस. ओके, तो जो हमने याद है इनिशियली यहाँ पे हम जब कंट्रोलर को ऑनबोर्ड कर रहे थे, ओके, तो हमने एक ट्रांसपोर्ट डिफाइन किया था कंट्रोलर में एमपीएलएस करके, है ना. एमपीएलएस, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट वीआर इस तरीके से लिखा हुआ जाएगा. यदि आपको कोई इंटरनेट रहेगा तो वहाँ पे इंटरनेट वीआर इंटरनेट